Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Voice Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. We are going to discuss a very informative and world famous novel of class intermediate part 2, that is Goodbye Mr. Chips. We are going to start chapter number 4 of the novel, that is on page number 8 onwards. Dear students, before embarking on today's lecture on Goodbye Mr. Chips, I would like to tell you something about the writer of the novel Goodbye Mr. Chips and the novel itself. Goodbye Mr. Chips has been written by James Hilton. James Hilton was an English novelist and journalist. He is best remembered for several bestsellers, including Lost Horizon and Goodbye Mr. Chips. In 1938, he had moved to America and then he stayed there in America till his death and wrote Hollywood screenplays. He also won an Academy Award in 1942. Academy Award को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है और ये एंटरटेनमेंट की दुनिया का, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फॉर हिज वर्क ऑन द स्क्रीन प्ले ऑफ मिसिस मिनेवर बेस्ड ऑन द नॉवल बाय जैन स्ट्रदर. नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द नॉवल. गुडबाय मिस्टर चिप्स इज़ अ नॉविला. नॉविला डियर स्टूडेंट्स एक शॉर्ट नॉवल को कहते हैं जो फुल लेंथ नॉवल की तरह नहीं होता. अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर मिस्टर चिपिंग एंड हिज लॉन्ग टेन्योर एट ब्रुकफील्ड स्कूल. डियर स्टूडेंट्स ब्रुकफील्ड स्कूल इज़ अ फिक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल. बोर्डिंग स्कूल को रेजिडेंशियल स्कूल भी कहा जाता है यानी अकामती इदारा. ऐसे इदारे जहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ उधर ही कैंपस पे रहते हैं उन्हें बोर्डिंग स्कूल या रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता है. लोकेटेड इन द फिक्शनल विलेज ऑफ ब्रुकफील्ड इन द फैनलैंड्स. Little Brown and Company USA first published Goodbye Mr. Chips in June 1934 and it attracted a lot of people across the world. Then it was also published by Hodder and Stoughton UK in October 1934. It is amazing that 15,000 copies were sold on the day of its publication. It has been adapted into 2 cinema films, 2 television presentations, radio and theatre as well. James Hilton portrayed his teacher William Henry Balgarnie as Mr. Chips. Mr. Balgarnie served at the Leys School, Cambridge. ये वो स्कूल है जहाँ जेम्स हिल्टन खुद पढ़ते थे और ये नावल उन्होंने अपने टीचर विलियम हेनरी बेलगार्नी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लिखा. एक और मौका पर जेम्स हिल्टन ने कहा कि इस नावल की इंस्पिरेशन उनके अपने फादर की तरफ से भी आई जो खुद एक अच्छे इदारे के हेडमास्टर भी थे. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 ऑफ द टेक्स्ट बुक गुडबाय मिस्टर चिप्स, chapter number 4. In the first introductory paragraph of chapter number 4, we are going to discuss 2 questions. Number 1, what was stirred in Mr. Chips by the gentle aroma of tea? Question number 2, where and with whom did Mr. Chips go in the summer vacation of 1896? From here the first question starts, that is, what was stirred in Mr. Chips by the gentle aroma of tea? There came to him, stirred by the warmth. Stirred means excited, stimulated by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea. Aroma means scent, यानी चाय की खुशबू और आग की हरारत से वो stirred हुए, वो stimulate हुए, वो excited हुए. तो उनको क्या याद आया? 1000 tangled recollections of old times. तो उन्हें tangled means naughty, complexed, messy, उलझी हुई. recollections means memories, reminiscences, यानी उन्हें उलझी हुई पुराने वक्तों की बहुत सी यादें आईं. वैसे भी जब आप सर्दियों में आग के पास बैठे हुए हों और चाय पी रहे हों तो आपको पुरानी यादें ज़रूर आती हैं. तो क्या याद आया? स्प्रिंग.
The spring of 1896. 1896 is a very important year in the life of Mr. Chips. He was 48 then, at an age at which a permanence means constancy, perpetuity of habits, यहाँ आदत इतनी पुख्ता हो जाती हैं, begins to be predictable. प्रिडिक्टेबल मीन्स फोर्सिएबल, एंटिसिपेटेड। उस एज में जाके आदत इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि उनके बारे में पहले से ही पेशीन गोई की जा सकती है कि अब ये क्या करेंगे। ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर। अपॉइंटेड तकर्रुर होना, डेजिग्नेटेड हाउस मास्टर विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, यानी क्लासिकल फॉर्म्स मीन्स क्लासेस, यानी वो जो क्लासिकल लैंग्वेज जिन क्लासेस को पढ़ाते थे उनके साथ, और उनको जो नई नई ये जो हाउस मास्टरशिप मिली थी, ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ हिज लाइफ। तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो हाउस मास्टर होते हैं उनकी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात गए तक बच्चों के साथ ही रहते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। From here the second question starts, that is, where and with whom did Mr. Chips go in the summer vacation of 1896? During the summer vacation he went up to the Lake District with Rowden, a colleague. Rowden जो उनके colleague थे, उनके साथ काम करने वाले थे, यानी co-worker. They walked and climbed for a week until Rowden had to leave suddenly on some family business. वो एक हफ्ते तक वहाँ सैर करते रहे, पहाड़ों पर घूमते फिरते रहे, जब राउडन को अपने किसी फैमिली बिजनेस की वजह से, अपने किसी ख़ानदानी प्रॉब्लम की वजह से वापस आना पड़ा। चिप्स स्टेड ऑन एलोन एट द वास्डेल हेड। वो जो इलाका था वास्डेल हेड का, मिस्टर चिप्स वहीं ठहरे रहे, जबकि उनके जो कॉलीग थे मिस्टर राउडन, ये वापस आ गए। वेयर ही बोर्डेड मीन्स क़याम करना, स्टेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस, जहां वो एक छोटे से फार्म हाउस में रह रहे थे। Dear students, in this part of the paragraph, we'll discuss two questions. Number one, what happened to Mr. Chips when he hastened to help the girl? Very important question from the examination point of view. Number two, what did it turn out after Mr. Chips had got hurt? One day, from here first question starts, that is, what happened to Mr. Chips when he hastened to help the girl? जब उन्होंने जल्दी में लड़की की तरफ चलना शुरू कर दिया मदद करने के लिए, तो फिर उनके साथ क्या वाक़या पेश आया? This is a very important question from the examination point of view. One day climbing on Great Gable, ये एक माउंटेन का नाम है, पहाड़ का नाम है। He noticed a girl, उन्होंने एक गर्ल को देखा, एक लड़की को देखा, वेविंग सिग्नलिंग, वो हाथ का इशारा कर रही थी, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वो किसी को हाथ का इशारा करके बुला रही है या मतवज्जो कर रही है, या एक्साइटेडली, वेविंग एक्साइटेडली मीन्स एंथ्यूजियास्टिकली, बड़े पुरजोश अंदाज में वो हाथ हिला रही थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज मीन्स सिल, वो जो पहाड़ का थोड़ा सा हिस्सा आगे को बढ़ा हुआ होता है, वो बड़ा डेंजरस सा नज़र आने वाला था। उस पे खड़ी बड़ी गर्मजोशी से वो हाथ हिला रही थी, ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रही थी। तो मिस्टर चिप्स ने क्या समझा? थिंकिंग शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज़। मिस्टर चिप्स ये समझे कि शायद वो जो लड़की है वो किसी मुश्किल का शिकार है। ही हेसन्ड टूवर्ड्स हर, हेसन्ड का सिनोनिम होगा रश्ड, हरीड, वो बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ चलना शुरू हो गए। बट इन डूइंग सो स्लिप्ड, लेकिन ऐसा करने में वो स्लिप हो गए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि वो स्लिप हो गए। एंड रैंच्ड हिज एंकल, रैंच्ड मीन्स स्प्रेन्ड, और उनका जो टखना था वो मुड़ गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हो गए। फ्रॉम हियर द सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट्स, दैट इज, व्हाट डिड इट टर्न आउट आफ्टर मिस्टर चिप्स हैड गॉट हर्ट?
एज इट टर्नड आउट, ये पता चला, शी वॉज नॉट इन डिफिकल्टीज एट ऑल, बट शी वॉज मेयरली महज, ओनली सिग्नलिंग, सिग्नलिंग मीन्स वेविंग, वो तो महज हाथ का इशारा किसको कर रही थी, टू अ फ्रेंड फार्दर डाउन द माउंटेन, जो मिस्टर चिप्स के नीचे, बहुत नीचे, पहाड़ की निचली जानब, पहाड़ के दामन की तरफ, वो अपनी एक सहेली को, अपनी एक फ्रेंड को हाथ हिला के बुला रही थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर, एक्सपर्ट मीन्स स्किलफुल, वो एक माहर पहाड़ पे चढ़ने वाली लड़की थी। बेटर इवन दैन चिप्स हु वॉज प्रिटी गुड, मिस्टर चिप्स खुद भी अच्छे क्लाइंबर थे, अच्छे माउंटेनियर थे, लेकिन वो जो लड़की थी वो मिस्टर चिप्स से भी बेहतर थी। दस ही फाउंड हिमसेल्फ द रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर, वो जो उनको बचाने के लिए गए थे बल्कि बाद में उनको खुद बचाना पड़ा, वो लड़की उनको बचा के नीचे लेके आई। एंड नाइदर रोल वॉज वन फॉर विच he had much relish, relish means enjoyment, delight, और इन दोनों किस्म का जो अमल था, लड़की को बचाने के लिए जाना और बल्कि बाद में खुद लड़की उसको बचा के जो नीचे लेके आई, इन दोनों में से किसी अमल में भी उन्हें कोई enjoyment महसूस नहीं हुई, उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं हुई। Dear students, here in this part of the paragraph we will discuss two questions. Number one, what were Mr. Chips' views about modern women? Question number 2, was Mr. Chips a conventional person? From here, question number 1 starts, that is, what were Mr. Chips' views about modern women? For he did not, he would have said, केयर फॉर वीमेन। मिस्टर चिप्स औरतों की को ख़ास परवाह नहीं करते थे, असल में वो औरतों की कंपनी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। बेसिकली ही वॉज अ बिट शाई पर्सन, थोड़े से शर्मीले आप कह सकते हैं। ही नेवर फेल्ट एट होम आर एट ईज़ विद देम, उनके साथ वो कभी भी ईजी फील नहीं करते थे, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। एंड दैट मॉन्स्ट्रस क्रीचर, मॉन्स्ट्रस मीन्स हॉरिबल, क्रीचर मीन्स लिविंग बीइंग, ये जो खौफनाक किस्म की मखलूक, वो ये वर्ड यूज़ करते थे औरतों के लिए, बिगिनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, जिसके चर्चे शुरू हो गए थे, जिनके बारे में बातें शुरू हो गई थीं। द न्यू वुमन ऑफ द 90s फिल्ड हिम विद हॉरर, ये जो नई औरत बन के सामने आई थी 90s में, ये जो औरतें थीं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई थीं और बहुत ज़्यादा आज़ाद भी हो गई थीं, और ये उसे खौफ से मामूर कर देती थी, उन्हें खौफ आता था ऐसी ख़ातीन को देखकर, क्योंकि वो उनकी इस जिद्दत को, उनकी इस आज़ादी को, उनकी इस न्यूनेस को, उनके इस मॉडर्निज़म को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो ये उसके व्यूज़ थे औरतों के बारे में। फ्रॉम हियर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट्स, वॉज मिस्टर चिप्स अ कन्वेंशनल पर्सन? ही वॉज अ क्वाइट, वो एक खामोश तबा, शाई किस्म के कन्वेंशनल पर्सन। कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल। येस, मिस्टर चिप्स वॉज अ ट्रेडिशनल पर्सन, वो एक रवायती किस्म के इंसान थे जो रवायात पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, और वैसे भी यूके खुद बहुत ज़्यादा रवायात पर अमल करने वाला मुल्क समझा जाता है पूरी दुनिया में। तो ही वॉज अ कन्वेंशनल पर्सन एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड। हेवन मीन्स रेफ्यूज, शेल्टर, सेंचुरी ऑफ ब्रुकफील्ड, यानी ब्रुकफील्ड के की पनाहगाह से जब दुनिया को देखा जाता, सीम टू हिम फुल ऑफ डिसटेस्टफुल इनोवेशंस। डिसटेस्टफुल मीन्स ऑफेंसिव, अनप्लेजेंट, इनोवेशंस न्यूनेस, नोवेल्टीज़, मॉडर्निज़म जिसे कह सकते हैं। वो दुनिया को जब ब्रुकफील्ड की पनाहगाह से देखता तो वो उसे नाखुशगवार आज़ादी, नाखुशगवार एक मॉडर्निज़म से भरपूर नज़र आती, जिसको वो कभी भी लाइक नहीं करते थे। देयर वॉज अ फेलो नेम्ड बर्नर्ड शॉ। बर्नर्ड शॉ, डियर स्टूडेंट्स, उनका फुल नेम जॉर्ज बर्नर्ड शॉ था, और उनकी अपनी दरख्वास्त पर, बल्कि इसरार पर, वो चाहते थे कि उन्हें सिर्फ बर्नर्ड शॉ के नाम से पुकारा जाए, तो दुनिया उन्हें बर्नर्ड शॉ के नाम से पुकारती है। वो आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, हैविंग रेडिकल एंड सोशलिस्ट व्यूज़, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो इनकलाबी किस्म के और सोशलिस्ट किस्म के ख्यालात के मालिक थे। हिज प्लेज आर कॉमेडीज़ बट इन्फ्लुएंस द ऑडियंस अ लॉट। वो कॉमेडीज़ लिखते थे ज़्यादातर, और जो ऑडियंस होती थी उनके प्लेज से बहुत ज़्यादा महजूज होती थी। तो देयर वॉज अ फेलो नेम्ड बर्नर्ड शॉ
who had the strangest and most reprehensible opinions. Reprehensible means objectionable. तो मिस्टर चिप्स के नज़दीक वो बर्नर्ड शॉ जो थे वो बड़ी ही काबिल एतराज़ किस्म के ख़यालात के मालिक थे, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स जॉर्ज बर्नर्ड शॉ को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे. देयर वॉज इब्सन. There was another person, Ibsen, whose full name was Henrik Ibsen. He was a Norwegian playwright. नॉर्वे के वो एक ड्रामाटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा समझा जाता है. His plays have radical views like Bernard Shaw and Place of Women in Society. वो भी औरतों के हकूक़, औरतों की आज़ादी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते थे और वो इनकलाबी किस्म के व्यूज़ रखते थे, मॉडर्न किस्म के व्यूज़ रखते थे, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स जॉर्ज बर्नर्ड शॉ और हेनरिक इब्सन को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे. देयर वॉज इब्सन टू विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेस एंड देयर वॉज दिस न्यू क्रेज़. क्रेज़ मीन्स ऑब्सेशन, एंथ्यूजियाज्म, एक पागलपन सा था फॉर बाइसिकलिंग विच वॉज बीइंग टेकन अप बाई वीमेन. यानी औरतें अब बाइसिकल चलाना शुरू हो गई थीं और ये जो बात है कि औरतों का बाइसिकल चलाना मिस्टर चिप्स को किसी तरह भी नहीं भाता था. मिस्टर चिप्स किसी तरह से भी औरतों के बाइसिकल चलाने को पसंद नहीं करते थे और वो बाइसिकल भी चलाती थी इक्वली विद मैन. मैन के साथ साथ वो बाइसिकल चलाती थी. चिप्स डिड नॉट होल्ड विद मीन्स लाइक, अप्रूव्ड ऑफ, लाइक्ड, उसको वो पसंद नहीं करते थे. ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम, इस न्यूनेस को, इस जिद्दत को, इस आज़ादी को वो पसंद नहीं करते थे. Dear students, here in this part of the paragraph, we will discuss two questions. Number one, what were Mr. Chips' views about nice women? Question number two, how was Mr. Chips brought down the mountain? Both the questions are very important. He had a vague notion. From here, the first question starts, that is, what were Mr. Chips' views about nice women? He had a vague notion. Vague means unclear. Notion means idea. वो एक बड़ा ही unclear सा मुबहम सा ख्याल रखते थे औरतों के बारे में. इफ़ ही एवर फॉर्मुलेटेड इट फॉर्म्ड इट. अगर उन्होंने कभी औरतों के बारे में सोचा हो या कभी को ख्याल बनाया भी हो तो वो बड़ा मुबहम सा ही होता था, यानी वेग नोशन होता था. दैट नाइस वीमेन वर वीक. अकॉर्डिंग टू मिस्टर चिप्स, व्हेन ही वॉज टॉकिंग अबाउट द नाइस वीमेन, ही थॉट दैट नाइस वीमेन वर वीक, timid. Timid means fearful, shy and delicate. Delicate means subtle, mild. उनके नज़दीक जो औरतें, जो नाइस विमेन होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, शाई किस्म की होती हैं और नरमो नाजुक किस्म की होती हैं. And that nice man treated them with a polite but rather distant chivalry. Chivalry means courtesy, politeness. और उनके नज़दीक जो नाइस मर्द होते हैं, जो अच्छे मर्द होते हैं, वो उनको बड़ी मेहरबानी से और कदरे किसी कदर फासले से रह के अदब व एहतराम से पेश आते हैं. From here the second question starts, that is, how was Mr. Chips brought down the mountain? He had not therefore expected to find a woman on Great Gable. वो Great Gable पे किसी, चूँकि पहाड़ों पे चढ़ना औरत के लिए बज़ाहिर वो समझते होंगे कि मुश्किल काम है, इसलिए वो नहीं समझते थे कि ग्रेट गैबल पे जो बहुत बड़ा पहाड़ है उस पे कोई औरत भी उन्हें नज़र आएगी. बट हैविंग एनकाउंटर्ड वन, एनकाउंटर्ड मतलब मेट, came across, उन्हें एक औरत मिली who seemed to need masculine help. Masculine means male, मैनली, जिन्हें एक मर्द की मदद की ज़रूरत थी, जो मिस्टर चिप्स समझते थे. हालांकि उन्हें उस लड़की को, जिसका नाम कैथरीन है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको किसी मदद की ज़रूरत नहीं थी. वो तो अपनी एक फ्रेंड को नीचे हाथ हिला रही थी जो मिस्टर चिप्स से नीचे थे, यानी पहाड़ के निचली तरफ थे. इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग. Terrifying means frightening that she should turn the table. Turn the table मामला ही उलट देना by helping him. तो उन्होंने तो मामला ही उलट दिया. वो मिस्टर चिप्स जो उसकी मदद करने के लिए ऊपर को चढ़ना शुरू हुए थे, गिर गए, स्लिप हो गए और उनके एंकल को मोड़ आ गया, जिसकी वजह से उस लड़की को मिस्टर चिप्स की हेल्प करनी पड़ी. For she did. She and her friend had to. उन्हें चूँकि मिस्टर चिप्स चलने के काबिल नहीं रहे थे
तो वो लड़की और उसकी जो फ्रेंड थी वो मिस्टर चिप्स को ऊपर से नीचे लेके आए। ही कुड स्केर्सली वॉक, स्केर्सली मीन्स हार्डली, वो बमुश्किल ही चल सकते थे क्योंकि उनके पाँव पे चोट आने की वजह से पाँव पे वज़न नहीं आ रहा था, वो चल नहीं सकते थे। ही कुड स्केर्सली वॉक एंड इट वॉज अ हार्ड जॉब गेटिंग हिम डाउन द स्टीप ट्रैक ऑफ टू वॉसडेल। स्टीप मीन्स वर्टिकल, अपराइट, यानी वो स्टीप माउंटेन था जिससे उनको नीचे लाना वासडेल की तरफ जहां वो रहते थे यकीनन एक मुश्किल काम था। That's all of today's lecture, dear students. I'm sure you might have enjoyed today's lecture. Before leaving, I must suggest you to consult the description link below. I have given a few words which are included in your MDCAT vocabulary, and those words are a part of chapter number 4 of Goodbye, Mr. Chips. If you have any question, if you have any problem, you may comment in the comment section below. I'll inshallah be there to answer you. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.